سب سے پہلے ہم نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اب میری درخواست ہے سب سے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، 3 بار استغفار کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں. ہمارا سب سے پہلے جو ٹاپک ہونا چاہیے نا ہمارا، وہ ہونا چاہیے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری. سب لوگوں کے پاس موجود ہے، میں دکھا نہیں پا رہا کیونکہ میرے پاس ذرا وہ ٹاپک بندہ پڑا ہے اور میں اس کو اسکرین شیئر نہیں کر پا رہا، یعنی کہ اس کو میں اسکیچ لے کر اس پہ اپنے لیپ ٹاپ میں ڈال کر آپ لوگوں کو دکھا نہیں پا رہا. اس کے لیے مجھے ذرا دوسرا مائکروسافٹ ورڈ میں اس کو پیسٹ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے اپنے موبائل سے اس کو لیپ ٹاپ میں لانا پڑے گا، کاپی کر پیسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ذرا تھوڑا سا مجھے آپشن تھوڑا سا مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ میں اتنا زیادہ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوں، تو تھوڑا محنت طلب کام ہوتے ہیں. تو تسلی سے بعد میں اپنی مسز سے سیکھوں گا یہ چیزیں. تو اس وقت بہرحال جو چیز ہے وہ تقریباً ٹاپک تو سب کے پاس ہے. تو ٹاپک تو سب کے پاس موجود ہے، تو اپنا اپنا ان باکس سکرول کر رہے ہیں تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا جو ہے اب ریکارڈنگ آپ لوگوں نے اب سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اب یہاں سے شروع کریں. جو پہلے 10-15 منٹ کا ہے وہ ایک قسم کا ٹائم پہ ضیاع ہے، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ اب شروع کیجیے. سر ایک ریکویسٹ تھی. جی سر جس بھائی کے پاس بھی ہے نا یہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ تھیوری، تو یہ سر اگر وہ اسکرین شیئر کر دیں، وہ ساتھ یہ ہے کہ ان کی اسکرین شیئر سے ہم دیکھتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ لائیو بتاتے بھی رہیں گے. اچھا، ایسا پاسبل ہے؟ جی جی سر، کوئی بھی اسکرین شیئر کر سکتا ہے. چلیے، جس کے پاس ہے نا وہ اسکرین شیئر کرے اور پھر ہم اس کو جو ہے نا دکھا دیں. یہ بڑا نہیں ہو سکتا؟ مجھے تو نظر نہیں آئے گا، وہ چھوٹی اسکرین ہے. کوئی لیپ ٹاپ والا ہے تو وہ شیئر کر دے، اور یا میرے پھر یہ پاس ایسا لیپ ٹاپ ہے. تو آپ کر دیں نا پھر شیئر. آپ اپنی اسکرین آف کر لیں، دوسرا بندہ شیئر کر دیں. اسکرین بڑی ہو جائے نا تاکہ صحیح نظر آئے اور آگے والے بھی لوگ بھی دیکھ سکیں. یعنی اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی جی نظر آ رہا یہ تو یہ آپ ہے نے نا. واٹس ایپ سے کیا ہے نا، ہے. اس کو بڑا کر دیں. یہ تو آپ نے واٹس ایپ سے کیا ہے تو بہت باریک ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا بڑا کر دیں گے سر، یہ آ جائے گا. اسے میکسیمائز کر دیں ونڈو کو. یہ ورڈ کے اوپر آپ کاپی پیسٹ کر لیں پھر اس سے بڑا ہو جائے گا، سکرول جی سر کرتے وہ رہیں بھی گے صحیح. ساتھ جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا اور بڑا کر دیں. جی، اب آپ نے صرف ایک چیز کو اوپن کرنا ہے، اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری کو. ٹھیک ہے سر. یہ تیسرے نمبر پہ نا؟ جی تیسرا نمبر. ٹھیک ہے سر. اچھا، کوئی بھائی کال کر رہے ہیں، ایک منٹ سنیے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری. سر اسکرین نظر نہیں آ رہا. نظر تو آ اسکرین رہا ہے نظر لیکن رہا آپ نے اپنی اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری اوپن نہیں کی جہاں سے ہم شروع کریں گے بات. یہ ایک منٹ، میں خود ذرا تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے.
سر ایک اور بھی سولوشن ہے, اگر آپ موبائل سے جوائن کر کے اپنی اسکرین شیئر کرتے ہیں نا تو وہاں سے بھی نظر آ سکتے ہیں. اچھا چلیں میں خود کرتا ہوں. اصل میں اس کو ویڈیو کو بڑا کرنا ذرا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. یعنی بھی میں کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. جی سر. سوری آپ لوگوں کو بہرحال پریشانی ہو رہی ہے, ٹائم سے ہو رہا ہے. نہیں سر کوئی ایشو نہیں. میں اصل میں میرے ذہن میں آیا ہے کہ ابھی اس کو کاپی کر کے میں ورڈ کی فائل میں ڈال دوں. جی سر وہ یہ سب سے بیسٹ ہے. ویسے نظر تو یہیں سے بھی آ رہا ہے سر, کوئی ایشو تو نہیں ہے. اچھا چلیں پہلے تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا. دیکھتے ہیں. جی سر. یہ جو اسکرین شیئر ہوئی ہے یہ زوم ہو رہی ہے اگر ہم اسے موبائل پہ زوم کریں تو. اچھا ابھی ذرا ایزی ہوگی. سر موبائل پہ زوم ہو رہی ہے اسکرین, سب لوگ اگر زوم کریں گے تو ہاں جی. جی تو کیا پنکھا آف کیا تھا؟ یہ ہو گیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے بہرحال, ورنہ میں یہ چیز دکھا دیتا. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. چلیں میں نے کیا تو ہے کوشش, جیسے پوری آئی نہیں ہے. سر اس طرح بھی ٹھیک ہے, نظر جی آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے. اس کو ہم زوم نہیں کر سکتے, بڑا نہیں کر سکتے, یہ آپشن نہیں آ رہے میرے پاس. سر نہیں یہی سر, زوم بھی اگر کر سب سکتے, لوگ اپنے اپنے اس کو موبائل کی اسکرین پہ بڑا سکرین نہیں پہ کر سکتے, یہاں سے کوئی ڈاٹ اپنے شاٹ. فون میں زوم ہوگا ایسا کم آگے. سر اگر سب لوگ اپنے موبائل کی سکرین کو ٹچ کر کے زوم کریں تو ہو رہی ہے. السلام علیکم سر. سر ویسے ہی موبائل کی سکرین پہ زوم ہو رہا ہے, اگر یہ موبائل کی سکرین پہ زوم کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ اب آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر نظر آ رہی ہے. جی میری سر سکرین نظر نظر آ آ رہی. رہی ہے؟ ٹھیک ہے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاں لکھی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی سر آپ سمجھائیں. ٹھیک ہے, یہ آ رہی ہے. یہ ذرا فانٹ چھوٹا ہے, میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں. میں اس سیکشن کو کلوز کرنا چاہتا ہوں جہاں کنٹیکٹس آ رہے ہیں, تاکہ اسکرین بڑی ہو جائے. تو اس کے لیے کیا سولوشن؟
है किसी को आइडिया? सर इसे कॉपी करके आप वर्ड पे ले जाएं फिर काफी ये करके वर्ड इस पे लेकर के हूँ मैं, ये देखें आप देखिए ये जरा थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया कुछ, ये उस तरह काफी नहीं, अपनी इधर आगे वो उधर चला गया, उधर आगे पीछे हो गया। सर आप एक काम कर सकते हैं, अगर यही टाइम मैनेजमेंट थ्योरी ये अगर आप मुझे दोबारा सेंड कर देना, मेरे पास नहीं है, मैंने देख लिया, तो मैं यहाँ वर्ड पे जो है ना फुल स्क्रीन पे जो है ना वो फिर शेयर कर दूंगा। अच्छा इसी को जो आपका पॉडकास्ट है यहाँ उसी में शेयर कर दे, एक आपका नाम क्या है? चला जाएगा। आपका नाम क्या है? मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सर मेरा नाम इदरीस है, मैं मैसेज करता हूँ आपको। फ्री टाइम में कोई बंदा जो ज़्यादा एक्सपर्ट हो इसमें कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल में, ज़रा थोड़ी सी मुझे कुछ कमांड्स वगैरह सिखा दो। ठीक है सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने अभी डिग्री ख़त्म हुई है, एक हफ्ता हुआ है, तो मैं आपके साथ जो है ना फिर सेशन ले लूँगा, ठीक है कर लेंगे हम साथ में इंशाल्लाह। ठीक है। एक हमारे भाई हैं सलमान काजी साहब हैदराबाद से, वो भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईटी के, तो वो मेरे ख्याल है शायद आज के ड्यूटी पे हैं, रात को उनका मैसेज आया था तो शायद नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह सर मैं अवेलेबल हूँगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक मैं है। फारिग हूँ। इदरीस नाम बताया ना आपने? जी सर, पर आपको मैंने मैसेज किया हुआ है। जी जी, मैं अभी आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। ठीक है सर। सर आप ब्रॉडकास्ट पे सेंड कर देना, वहाँ पे आ जाएगी सारे। असल में 4 ब्रॉडकास्ट किस में का मुझे क्या पता कौन से में है प्रॉब्लम जो हो गया। इदरीस पेशावर से है ना आप? जी सर। तो मैंने आपको सेंड कर दिया, अब आपने से मुझे शेयर कर वर्ड पे कॉपी करके कीजिएगा। अब सबसे पहले कौन सा करें, अकाउंट मैनेजमेंट? जी सबसे पहले कौन है, क्योंकि सब गलतियाँ इसी के अंदर करते हैं। अच्छा कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मेरी सबसे खास ये है कि जो लोग क्लास में मौजूद हैं ना वो मुझे इनबॉक्स में टेक्स्ट कर दें जो नहीं कर सके अभी तक, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन लोग हैं जो ये यहाँ पे ठीक नहीं है क्लास में, और ख़ास तौर पर वो लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे ज़रूर बता दें कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि उनसे फिर मैं कल को ले सकूँ। एनीवे तो अब स्क्रीन शेयर हो गई है? सर ये जो है ना मैं शेयर कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन तो सब लोगों को नज़र आ रही है ना? जी सर। जी अब इसको ज़रा जूम करते हैं। जी असल में ना एक्चुअली आपने वर्ड पे किया ना, सेम ऐसे ही फॉन्ट मेरा भी आया है, ये तो देखें ना ये आगे पीछे हो गया, आप देख रहे हैं ना? जी सर। तो ये मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, ये वर्ड के ऊपर जाकर ना ये आगे पीछे हो जाता है। ये यहाँ से ऑटो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि ये। चलें ठीक है, छोड़ें इसको, अब हम इसका वही पुराने तरीके में ही काम करते हैं, क्योंकि तो सही नहीं हो पा रहा, इसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आफा साहब शुरू करें। वो सबके पास है, वो है लिखा हुआ है, सब अपना अपना देख लेंगे। चलें ठीक है, जिसके पास कोई लैपटॉप में अगर है ना डायरेक्ट सेव, तो लैपटॉप की वजह वो कर दे, वर्ड में ना करे, चलो उससे अगर सेव हो सकता तो उससे कर। अभी कुछ गुजारा हो गया सर? चलो गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, प्रॉब्लम जा रहा है ना वो ये आ रहा है। ये देखिए ना, ये अपने इक्विटी, ये जो लफ्ज़ है ना, ये इसको इधर होना चाहिए था। जी सर। ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें देखें ना आप, ये आगे पीछे हो गई हैं। एनीवे दोबारा टाइप करना पड़ेगा इसको, फिर किसी वक्त करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं, बस टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। मेरे बच्चे भी उठ गए तो उन्होंने शोर मचा देना।
सर मैं ये कोशिश चलो सर कोशिश आप शुरू करें, मैं कोशिश करता हूँ जब हो जाए सही तरीके से फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, ऐसा है कि सबके पास मोबाइलों में तो मौजूद है ना, तो पढ़ते हुए कम से कम जो है ना वो उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को बस जूम करके छोड़ दें, जितना होगा बस हम अपने मोबाइल से पढ़ लेते हैं, देखने वाले देख लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है सर। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना अब करनी है, ठीक है ना, जो पहले ठीक है वाली उसको एडिट कर दें, ठीक है, जो कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, ठीक है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी। जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, हमने उनको बार बार समझाया है कि देखिए अगर अकाउंट मैनेजमेंट आपको आती होगी, मनी मैनेजमेंट जो आपका अकाउंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप लॉट साइज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो फंस जाएंगे और अक्सर फंसते हैं, ठीक है। तो वजह क्या होती है कि इक्विटी ज़्यादा यानी कि यूज़ कर जाते हैं, इक्विटी थोड़ी होती है, लॉट साइज बड़ा लगा लेते हैं और फिर थोड़ी सी मार्केट और नीचे आती है, एक और ट्रेड ले लेते हैं, फिर तीसरी ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं और उनका अकाउंट हाफ रह जाता है या वाश हो जाता है, ठीक है, या अच्छा खासा लॉस हो जाता है उनको और वे परेशानी का शिकार होते हैं। इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक इस बात पे अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी पे, दूसरा टाइम थ्योरी पे। ये टाइम थ्योरी के ही चैप्टर्स हैं, अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी भी इसी का चैप्टर है, डे टाइम फार्मूला भी इसी का चैप्टर है, एम डेटा फार्मूला भी इसी का चैप्टर है। बेसिकली टाइम थ्योरी हमारी बुक है, समझें, हमारा एक रिसर्च पेपर है, उसी के ही जुज़ हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी भी उसी का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर हमने सजेशन दी है कि देखें कोई भी आप बिजनेस करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई उसमें करियाने की दुकान बनाते हैं, ठीक है, कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं, कोई कपड़े की दुकान बनाते हैं, कोई शूज के बुक करते हैं, बहुत सारे काम हैं जो बिजनेस रेलिवेंट है, सर्विसेज रेलिवेंट नहीं, ठीक है ना। बिजनेस यानी कि ना मर्केंटाइल बेस्ड जो बिजनेस है उनकी मैं बात करूँ, बेकरी बना लेते, कोई भी होती है, आप एक शॉप अरेंज करते हैं, कोई एक ऑफिस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप कम से कम भी उसको ऊपर 20 कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक, जो भी है बहरहाल, तो आप उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक फार्मेसी खोली है, आपने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है एक अच्छी फार्मेसी बनाने के लिए, 50 लाख की, क्योंकि आपने दुकान भी हायर की है, शॉप, उसका कोई रेंट, कोई एडवांस कुछ वो भी पे किया है, उसके लिए फर्नीचर अरेंज किया है, उसकी डेकोरेशन की है, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स आपने किए हैं, फिर आगे आपने इन्वेंट्री स्टॉक मंगवाया, ठीक है, कुछ क्रेडिट पे बहुत सारा कैश पे मंगवाना पड़ता है आपको स्टार्ट करना। तो इसी तरह आपके रनिंग एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई, बोर्ड बनवाया आपने और फ्लैक्स वगैरह बनवाए, उसके एडवर्टाइजमेंट कराई, आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पर अगर आपका 30 लाख हो गया, 30 लाख आपका, ठीक है, तो आपका पहला महीना है, आपने कोशिश की है और 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आपने कोशिश की है, आपका फर्स्ट मंथ है फार्मेसी को चलाने के लिए, उसके अंदर हुआ क्या है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर सुबह से लेके रात गए तक आपने ड्यूटी किया, 12 घंटे की, 16 घंटे की, 14 घंटे, जो भी आपने किया, 12-15 घंटे की, अमूमन इतनी होती है, या 18 घंटे तक की बाजू का ड्यूटी करते हैं, डबल शिफ्ट होती जाती है। तो वो आपने की है, करने के बाद महीना जब एंड होता है तो फिर आपने रेंट भी पे करना है उस महीने का जो आपने किया है। आपने अगर कोई मुलाजमिन सर्वेंट वगैरह रखे हैं सफाई के लिए, सेल मैन के लिए, दीगर मामला के लिए, उनको पे भी देनी है, आपने बिजली का बिल भी अदा करना है, और आपने कोई टैक्सेस वगैरह है तो वो भी अदा करना है। अगर फ्रेंचाइज की, अगर आपने कोई फ्रेंचाइज ली है किसी इदारे की, किसी यानी कि बड़े ब्रांड की, जो भी है, जिस तरह भी है, तो उसको आपने कमीशन शेयर भी देना है जो आपने यानी कि किया। ये सब कुछ उसको कहते हैं बिजनेस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स बना सकते। तो ये जो आपने एक्सपेंसेस कर ली हैं, ठीक है, इसके बाद मिसाल के तौर पर आपकी टोटल सेल हुई है तकरीबन यानी कि आपका टोटल यानी 30 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपका एक्सपेंडिचर के बाद आपने सारा जो कैलकुलेशन की है, इन्वेंट्री को निकाल करके आपने फील किया कि आपको 3 लाख टोटल बचे हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 30 लाख में से 3 लाख बचे, आपको प्रॉफिट हुआ है पहले मंथ के, दूसरे महीने, छठे में, जो भी है, आपको 3 लाख रुपए का फायदा हुआ। 3 लाख रुपए के अंदर आप क्या करते हैं, पहले तो उसमें से अपने एक्सपेंडिचर्स मिनिमाइज करते हैं। मिसाल को 2 लाख रुपए का आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, रेंट दे दिया, सैलरीज दे दी, किराया दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, जो भी एक्सपेंडिचर्स है, मेंटेनेंस के कोई टूट के पीछे कोई चीज़ खराब हो गई, वो सारे एक्सपेंडिचर्स है। रूटीन के अंदर ग्राहकों को, कस्टमर्स को खाना वगैरह बाजू का खिलाना पड़ता है, सेलमैनों को खिलाना पड़ता है, ये सारे जो आपने बिजनेस के ऊपर बैठकर एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो सारे आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर्स कराएंगे।
ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उनको हम कहेंगे, वो आपने 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, पीछे आपको क्या बचा, आपको 1 लाख रुपया बचा, या मिसाल के तौर पर आपको 5 लाख रुपए की प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 5 लाख रुपए में से तकरीबन 2 लाख रुपए आपने एक्सपेंडिचर्स निकाल दिए, पीछे आपको 3 लाख रुपया बचा, ठीक है, जो आप अपने घर लेकर जाएंगे और अपने अहलो याल की और अपने जो भी हैं उनकी कफालत, जो आपकी कफालत में बहन भाई वगैरह जो भी हैं माँ बाप, उनकी कफालत पे खर्च करेंगे। आपको एक्चुअली जो पैसे बचे हैं, जो आपने पूरा मेहनत करने के बाद, ठीक है ना, खपखपाई के बाद पूरे महीने बाद आपने छुट्टी भी नहीं की, आपने कोई और भी काम वो नहीं किया, तो आपको एक्चुअली जो बचे हैं वो 3 लाख रुपए बचे हैं अपने घर चलाने के लिए। ऐसे ही है ना कि 3 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ, तो 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 3 लाख रुपए महीना बचा, तो वो कितनी परसेंटेज है, वो सिर्फ 10% है। ये एक अच्छे बिजनेस की मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अमूमन ऐसा नहीं होता, 1-2 साल तो लगते हैं, आपको अपनी जेब से मजीद पैसे लगाने पड़ते हैं, 2 साल के बाद जाकर आपका बिजनेस थोड़ा बहुत ग्रो करता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, फिर आपको कुछ ना कुछ देना शुरू करता है, लेकिन देता इतना ही है। हर चीज़ की एक सैचुरेशन होती है, खाद होती है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, किसी भी शॉप वाले से पूछ लें, किसी भी, आप खुद भी कई बिजनेसमैन होंगे, आप चेक कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 10% 12% इतनी बचत होती है आखिर में आकर, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का आप बिजनेस कर कोई भी कर रहे हैं, तो सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद आपको मुश्किल से 10-15% ही फायदा होता होगा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो ये समझाने के लिए मैंने बात की है। अब यहाँ से हमारी अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी शुरू होती है, ये मैंने एग्जांपल दी है। अब ये भी तो एक बिजनेस है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कहा जाता है, स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट का ही अब लेटेस्ट फॉर्म के अंदर एक ब्रांच बना के इसका नाम दे दिया गया मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो इसको कह दिया गया कि ये मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है, दुनिया में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज भी सब है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पार्ट है, उसको हमने कह दिया कि ये मर्केंटाइल एक्सचेंज है। बेसिकली इसमें मर्केंटाइल चीज़ें जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त हो रही होती है, उनके शेयर्स की। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज की हो रही होती है, ठीक है। तो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग है, करेंसी एक्सचेंज जिसे कहते हैं, ठीक है। मेटल ट्रेडिंग है, जिसके गोल्ड सिल्वर वगैरह ऑयल वगैरह हम कहते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज भी आ जाता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह, बिटकॉइन वगैरह, इनके शेयर्स भी आप करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ वेरी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सलमान काजी साहब ने माशाल्लाह मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए चीज़ों पर, मैं ज़रा इनको अपने लैपटॉप में करूँ और ये इजी हो जाएगा समझाना। तो ज़रा पास कर दीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग को। जी, अब मेरा ख्याल है सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। नहीं सर, आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। अच्छा, प्रेजेंट नो के ऊपर क्लिक कर लें। मैं करता हूँ, आसान हो गया ज़रा काम।
ऑप्शन कुछ और आ गया। आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं सर। अच्छा, इसमें मैंने प्रेजेंट को किया है तो इसमें आ गया, कुछ चीज़ें आएंगी। डाउनलोड क्या शेयर करना चाहते हैं, सिलेक्ट टू टैब टू शेयर। सर वहाँ से 3rd नंबर पे जो एंटायर स्क्रीन है ना वो सेलेक्ट करें, प्रेजेंट नो के ऊपर क्लिक कर लेना, ऊपर अच्छा। टैब आ रहा होगा एंटायर स्क्रीन, तो वो शेयर कर दें तो फिर आ जाएगा शेयर। अच्छा, एंटायर स्क्रीन, ठीक है। अब आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? नहीं सर, एंटायर स्क्रीन तो मैंने की है। एंटायर स्क्रीन के बाद जो है ना ये, हाँ जी आ गया, ये किसी और का है। अच्छा, अच्छा, तो एंटायर स्क्रीन का नहीं आ रहा कुछ। चल, जी हाफिज साहब, कॉल भी ड्रॉप हो जाएगी 15 मिनट बाद। अच्छा, चलिए दोबारा बहरहाल भेजा तो है, मैं तो एंटायर स्क्रीन भी कर रहा हूँ साहब, और सो प्रेजेंटिंग पे भी, वो हो नहीं रहा। एक ही ऑप्शन आ रहा है। एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद जो है ना स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें फिर शेयर कर दें। हाँ ये आ गया। अच्छा, ठीक है, अब आ गया। जी सर। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन सबको? जी सर। ठीक है, जी बिल्कुल सर, आ रही है क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हम जब देखते हैं, ये हमारी अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी। अब ये दोबारा रिकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, पास किया था ना पहले, ये इसको एडिट कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं कर सके। अच्छा, अब हमने जो एग्जांपल दिया है कि 20, हमने भी इसको एक बिजनेस के तौर पर लेना है, और जो बिजनेस होता है वो तकरीबन जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, हम इसको भी एक बिजनेस समझें और 20% अपना टारगेट रखें कि हमने 20% ही कमाना है। 50% की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम 100 लगाएं और 100 कमाएं, ऐसा ना सोचें, गलत सोच है ये हमारी, ठीक है ना। 100 के ऊपर हमने 20% ही का टारगेट रखना है कि हमने 20 रुपीज़ कमाना है, $20 कमाने का, $100 का अकाउंट है तो हमारा, ठीक है। तो फिर आप इजीली अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको ट्रेड कम लेनी पड़ेगी, आपको लॉट साइज कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजतन क्या, आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अगर आप उसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो फिर याद रखिएगा आपका अकाउंट पहले की तरह नुकसान में जाएगा, ठीक है। बिजनेस को बिजनेस समझे, गैम्बलिंग ना समझे। बार बार ट्रेड ना लें, मैं आपको मना करता हूँ। एक सेशन में एक ट्रेडिंग थ्योरीज हमारी ये कहती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रेडिंग थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा, पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ। एनीवे, फिर भी हम वही बार बार गलती कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब मैं इसको पढ़कर बताता हूँ आप लोगों को कि देखें, अपनी इक्विटी को सामने रखते हो, जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपकी इक्विटी, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, अपनी इक्विटी को सामने रखते हुए अपना मंथली टारगेट बनाएं। क्या आपका मंथली टारगेट है कि आपने कमाना कितना, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। और डेली बुनियादों पर, बाकी लोग खामोश हो जाएं, और डेली बुनियादों पर इसे, माइक ऑफ करें यार प्लीज, और डेली बुनियादों पर इसे अचीव करें, ठीक है ना। क्यों, आगे चल के हम बात करते हैं कि डेली बुनियाद पर रोजाना हम काम कर रहे हैं, तो हमने रोजाना अपना मंथली टारगेट बनाया कि हमने मंथ में इतना कमाना है, तो डेली कितना कमाना है उसको डिवाइड किया जाता है। मेरा मंथली टारगेट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अपनी इक्विटी का 20% है, जो भी मेरा अकाउंट है मैं उसका कोशिश करता हूँ 20% तक ही कमाऊं, ठीक है। और रोजाना का 1%, यानी 20% कैसे अचीव होगा मुझे, 20 डेज मार्केट वर्क करते हैं। यूजुअली हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 दिन छुट्टी होती है, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो हम 4 वीक्स को क्या करते हैं, तकरीबन 20 डेज या 21, 22 डेज, बाजू को छुट्टी भी आ जाती है। एनीवे, कि हमने टारगेट अगर 20% रखा, तो हमने डेली जो है ना ये 1% हासिल करना, ठीक है। रोजाना 1% कमाना है, सिर्फ 1%, ठीक है। ये बंद करें, अपने माइक बंद कर लें। आमतौर पर मार्केट एक माह में 20 दिन काम करते हैं, 20 डेज काम करते हैं, जो मैंने भी आपको समझाया। 4 वीक्स ये मेहरबानी करें, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, अपने माइक ऑफ कर लें। यानी एक माह में
20 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी टोटल 20% आपने टारगेट हासिल करना है। यानी अगर आपने $500 का आपका अकाउंट है तो आपने सिर्फ $100 कमाने, $100, ठीक है। आपने उसको 200 करने की कोशिश नहीं करनी, वो 40% हो जाएगा, ठीक है। 40% हासिल करने के लिए आपको ज्यादा तगोदो करनी पड़ेगी, तगोदो की ज्यादा की कोशिश में आप अपना लॉस कर जाएंगे। सब्र और जज्बात पर, ठीक है, अपने इमोशंस पर, ठीक है ना, टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ आपने काम करना है, काबू करके। टाइम थ्योरी, ये बुनियादी बात है, टाइम थ्योरी, ये टाइम थ्योरी के पार्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेन हमारी बुक का नाम है टाइम थ्योरी। टाइम थ्योरी के मुताबिक ट्रेड करते हुए ये टारगेट बासानी हासिल किया जा सकता है। टाइम थ्योरी के अंदर जो हमने टाइमिंग मना किया है कि काम नहीं करना, तो उस टाइम पे काम नहीं करना, अदरवाइज आपको लॉस करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि उन टाइम्स के अंदर सेशंस की ओपनिंग हो रही होती है और कोई बड़ा लॉस हो सकता है, कोई अचानक बीच में कोई हिडन न्यूज आ सकती है, ब्रेकिंग न्यूज, कोई फंडामेंटल न्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई डाटा इन्वॉल्व हो सकता है जो मार्केट को उतार चढ़ाव अच्छा खासा कर सकता है और हम अपना लॉस कर सकते हैं। इसलिए टाइम थ्योरी जो है ना वो बहुत अहम है। हर चीज की टाइमिंग होती है, काम करने की भी टाइमिंग होती है, उस टाइम पे ही आपने काम करना है। अगर आपको पता चले कि बाजार में डाकू आने वाले हैं, ठीक है, तो आप फौरन, ये चोर आने वाले हैं, डाकू आने वाले हैं, तो ये कोई फायरिंग होने वाली है, कोई ऐसे मिसहैप होने वाला है, एहतजाज होने वाला है, कोई तोड़ फोड़ का मसला है, आप अपना कारोबार बंद करके घर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, याद रखिएगा। यही टाइम थ्योरी कहती है कि गैम्बलिंग होने वाली है, बड़े बड़े मगरमच्छ आने वाले हैं, वो एकदम कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, उससे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, छोटे मोटे अकाउंट होल्डर जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं कि क्रॉस फायरिंग में राहगीर मारा गया, ठीक है। तो आपका अकाउंट नुकसान में जा सकता है, इसलिए आप बेहतर है उस टाइम पे ट्रेड ना करें। ये हमारे टाइम थ्योरी का मेन फलसफा है, ठीक है। जो उस ट्रेड टाइम से बच जाएंगे उनका अकाउंट सेफ रहेगा, वो नुकसान में कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा टाइम थ्योरी का मेन माटो है, ठीक है। अच्छा, ये टारगेट आसानी से हासिल किया जा सकता है, ज्यादा के लालच में बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। मैंने कहा है 20% तक रहें, इससे ज्यादा का 50%, 100% का ना सोचें, बहुत गलत सोच है ये। अच्छे से अच्छा कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट का एक माह में 20% ही मुनाफा आपको दे सकता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 1:500 की रेशियो से लार्ज साइज लें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हसीब भाई साहब ने 1:1000 का कहा है अपने वाइसिस के अंदर। मैं बहरहाल रिकमेंड यही कर देता हूँ, चीज का $500 का अकाउंट है वो 1 औंस के ट्रेड ले, ठीक है। जिसका $1000 का अकाउंट है वो 2 औंस की ले सकता है, जिसका $2000 का अकाउंट है वो 4 औंस के ट्रेड लेता है, 4 औंस की, ठीक है ना। ये गोल्ड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी ही रेशो रखे, कम से कम भी कोई भी कर रहा है 1:5 के 499 499 हाथ में रखे और सिर्फ 1 जो है ना उसको लगाए वो, ताकि उसको कहीं फंस भी जाए, कोई मसला भी हो जाए तो उसके लिए बैकअप इतना हो कि उसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और वो जल्दबाजी में अपना नुकसान ना करे। कोशिश करें $500 का, जो मेरा रिकमेंडेड अकाउंट है वो यही है, $500 इक्विटी का अपना अकाउंट बनाएं। इससे कम का अकाउंट इंतहाई रिस्की होता है, ठीक है, कम पैसों का रिस्की होता है, बिजनेस को बिजनेस के हवाले से करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बात आ जाती है कि अगर किसी ने थोड़े पैसे हैं, इनिशियल है, जो भी है तजर्बे के तौर पर करना चाहता है, अगर किसी ने $200 या $300 का भी अकाउंट बना लिया है तो वो भी कोशिश करे 0.01 की सिर्फ एक लाट ले और अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा उसका $5 तक होना चाहिए, ठीक है, डेली का। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ $5 उसने कमाने हैं, इससे ज्यादा ना कमाए, ठीक है। तो उसके लिए 0.01 की 1-2 लाट लेगा, 1-2 डॉलर करके निकालेगा, शाम तक उसके $5 बन जाएगा, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अगर किसी का $500 का अकाउंट है तब भी वो 0.01 की ही ट्रेड ले और वो टारगेट कोशिश करे $5 तक ही महदूद रहे। अगर 5 नहीं तो कम, चलो 7, 8, 10, अगर किसी दिन कोई अच्छा मौका मिल जाता मार्केट का तो महफूज रहते हुए, टाइम थ्योरी पे अमल करते हुए वो अपना $10 तक प्रॉफिट ले सकता है $500 वाला। लेकिन लाट उसकी 0.01 की एक ही होगी, ये नहीं होगी कि 0.01 की वो 4 लाट से इकट्ठी कर ले, ऐसा ना करे, वो फिर 4 औंस हो जाएंगे, 1 नहीं होगा और वो लॉस कर बैठेगा, जो अक्सर हम करते हैं। इसी तरह आगे लिखा हमने $1000 तक के अकाउंट होल्डर 0.02 की लाट से अपना डेली टारगेट $10 से $15 तक महदूद रखें, ठीक है ना। यानी 10 से 15, $10 to $15 कमा सकते हैं जिनका $1000 का अकाउंट है, ठीक है। जिनका 1000 का होगा वो $10 का डेली कमाएगा तो $200 बनते महीने में। अगर 15 कमाएगा तो $300 हो जाएंगे। 200 से $300 $1000 के अकाउंट के अंदर अगर आप कमाएं तो ये कोई वो नहीं है, खसारे का सौदा नहीं, बहुत अच्छा सौदा है। कोई भी बिजनेस आपको घर बैठ के इतना पैसे नहीं दे सकता, मोबाइल पे घर बैठ के आराम से सुकून के साथ आप पार्ट टाइम के तौर पर टाइम आपने सेट किया हो, उसके तहत काम करें। $1000 बनता कितना, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी, और 3 लाख रुपए लगाकर आप, सिर्फ 3 लाख रुपए लगाकर आप अगर $200 भी कमाएं तो वो 60,000 बनता है, 60,000। और अगर आपने
$250 कमा तो 75,000 बनता है। अगर आपने $300 तक कमा लिया तो 90,000 बनता है। यानी 60 से 90,000 तक आपने कमाना आपके लिए जायज़ है, महफूज है, ठीक है, यानी बिजनेस के उसूल के मुताबिक है। अगर आपने इससे ज़्यादा की कोशिश की तो याद रखिएगा नुकसान उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा मशवरा है। इसके मुताबिक अपनी इक्विटी जिसकी जितनी ज़्यादा $5,000 वाले के है तो वो अपना उसके हिसाब से अपने सेट कर ले। टारगेट यही रेशो रहेगी 1:15 उसकी रेशो से आप काम करेंगे और 20% आप कमाएंगे। एक सेशन में सिर्फ एक ही ट्रेड लें, एक टाइम में, बार बार ना लें। 3 सेशन होते हैं, एक ट्रेड ले लिया है, छुट्टी कर जाए, उसमें आपको $2-3 मिल गए, छुट्टी कर जाए, आपका उस टाइम का टारगेट पूरा होगा। नेक्स्ट सेशन जब आएगा अमेरिकन यानी कि यूरोपियन सेशन, एशियन सेशन और अमेरिका सेशन, ठीक है, 3 सेशन होते हैं। और इसी के प्रॉफिट पे सब्र करें, 1 या 2 ट्रेड से ही आपका डेली टारगेट पूरा हो जाएगा। बार बार ट्रेड मत लें, ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा $5 के मूवमेंट पे क्लोज कर लें, कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। ज़्यादा से ज़्यादा $500 अगर आपको मिल रहे हो ट्रेड के अंदर, वहाँ तक आप बस होल्ड करें और उसका प्रॉफिट बुक करें। 4, 5, 3 जो भी आपको मिल रहा है, कोशिश करें बस $5 जब मिल जाए क्लोज कर दें। ऐसा हो मार्केट रिवर्स चल जाए और आप मुंह देखते रह जाएं, और अक्सर होता भी ऐसे ही है। और नुकसान अगर लॉस में चल रही है तो भी इससे ज़्यादा होल्ड मत करें, कि एक टाइम में अगर आपने $5 का नुकसान कर भी लिया तो अगले टाइम में रिकवर हो जाएगा अगले सेशन में। अगर आपने नुकसान को ज़्यादा होल्ड कर लिया तो याद रखना वो $20-30 तक चले जाएगा और आप नर्वस हो जाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे, और इतना बड़ा लॉस जो है ना फिर आसानी से होल्ड नहीं हो, कंट्रोल वो नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है, मुश्किल हो जाता है और आगे बंदा डिमोरल हो जाता है और आगे 2-3 दिन काम ही नहीं कर पाता, ऐसा हो जाता है। थोड़ा कमाए लेकिन ज़रूर कमाए, ठीक है। अपनी इक्विटी के हिसाब से शुक्रगुजारी के साथ ज़्यादा के लालच में पछतावे और नुकसान के सिवा कुछ नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। ये आखिर में मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर नसीर खालिद और नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ सबके पास मौजूद है, 03334739 पाकिस्तानी कोड के मुताबिक ये मेरा है। ये हमारी अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी मुकम्मल हो गई, ठीक है। कॉल तो अब आप जो लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं वो इस चीज़ को देख लें, तो जो है उसके ये अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। इसके बाद हम डे टाइम फार्मूला और अमेरिकन टाइम फार्मूला पे बात करते हैं, ठीक है। अभी हम 2 मिनट का वक्फा लेंगे, कॉल एंड होने वाली, मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा और सबके साथ, और फिर क्या कहते हैं उसको जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम जो है ना डे टाइम फार्मूला पढ़ेंगे कि उसमें हमने काम कैसे करना है, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने रिकॉर्ड किया उसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे इन अल्फाज को, आगे पीछे जो थोड़ा बहुत बोलें, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास के लिए यही दोबारा रीज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या वो नया ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, मैं दोबारा नया लिंक देता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉल एंड कर इससे ओके सर वेटिंग। जब तक मीटिंग एंड नहीं होती, इससे रेलेवेंट कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी है किसी का कोई सवाल? चलें ठीक है, मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई ये बात अच्छी तरह से। ये है अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूँ कि अपने अकाउंट के साथ मत खेलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है थैंक यू आपसे। सर, थैंक यू, शुक्रिया जी। क्वेश्चन किसका है आपका? जी डे टाइम फार्मूला में जो मार्केट 10 या 15 अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी की बात हुई है, यहाँ तक फोकस रखें। इसमें कुछ चीज नहीं समझ आई, कोई बात पूछनी है तो सवाल कर सकते जी, सवाल कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी से मुतालिक, मनी मैनेजमेंट से मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी रह गई है तो वो सवाल कर सकते हैं। सर मुझे फिर थोड़ा सा एग्जिस्ट कर दीजिएगा। एक्सनेक्स में 1/2000 भी है, उसका क्या मतलब है? वो तो उन्होंने आपको लिवरेज दिया है ना। लिवरेज होता है कि लिवरेज इसलिए भी दिया जाता है कि ब्रोकर आपको बताता है कि 2000 रुपये मैं लगाऊंगा, 1 रुपया आप लगाएंगे। कोई 3000 देता कहता है 3000 मैं लगाऊंगा, 1 रुपया आप लगाएंगे। गोल्ड का एक औंस है, ठीक है ना। उसने 1/2000 का दिया है। इसका मतलब यह है कि $1 वो आपका उठाएगा 1 औंस ट्रेड देने में, और 1999 स्पॉट वो देगा, ठीक है। उसको आपका $1 रिजर्व दिया है। कोई कंपनी आपके $4 उठाती है 1 औंस के पीछे, उसको कहते हैं यूज्ड मार्जिन,
ठीक है, वो अपने पास रखती है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग में दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि गोल्ड के लिए कम से ये कम कितना देखिए मेरी बात डिपॉजिट सुनिए, मैं दिखा देता हूँ के आपको। गोल्ड में वर्क करने के लिए? मेरे पास कोई ऐसी ट्रेड ओपन नहीं हो रही जो मैं आपको दिखा सकूँ। बहरहाल चलें, ये यूज मार्जिन है, देखिए यहाँ पे टोटल इक्विटी लिखी हुई नजर आ रही है ना। ठीक है, जब यहाँ को ट्रेड होती है ना, तो वो जब हम एक उसको ट्रेड लेते हैं तो फिर पूरी डिटेल आ जाती है, यूज मार्जिन, फ्री मार्जिन, तो कितना फ्री मार्जिन रह गया आपके पीछे, जो रह गया डेफिनेटली उससे आप मजीद ट्रेड ले सकते हैं। कुछ उसमें यूज मार्जिन उठा लिया आपने, जो आपने ट्रेड ओपन रखी हुई है वो है, जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे वो आपको दे देगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ये आगे कोई सवाल? ठीक है, कॉल एंड करते हैं, 2 मिनट का वक्फा करते हैं, दोबारा लिंक शेयर